Hello learners, I once again welcome you all to our YouTube channel. We are learning synonyms and antonyms asked in previous education papers of various examinations such as SSC, Banking, Railways, NDA, CDS, etc. If you have not seen our previous videos, you can have access to those videos by simply clicking on the links available in the description box of this video only. Friends, before I begin today's session, I would like to say something. I have an advice for all of you. I will tell you what is the advice in the end of this video, so please ensure that you watch this video till the end. So let's not waste our time and begin our today's session. Friends, the first question which we have for today's session is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is from CDS part 1 which was conducted in 2021. The word is bombastic. It's an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is outdated. Option number 2 is straightforward. Option number 3 is verbose. Option number 4 is not true. Let's look at the meaning of bombastic. It means marked by speech or writing that is artificially exaggerated. That is artificially exaggerated. Exaggerated. There is less truth in the speech or writing which we are referring to. तो जो बोम्बास्टिक होता है वो कैसा होता है, वो आर्टिफिशियली एग्जाजरेटेड होता है, कोई स्पीच या कोई राइटिंग. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज आउटडेटेड. इट मींस नो लॉन्गर करंट. नो लॉन्गर करंट. जो आउटडेटेड है वो प्रेजेंस में नहीं है, वो प्रेजेंस में नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है. Let's move on to next option which is straightforward. It means free from evasiveness. evasiveness. इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो इवेजिवनेस से, इवेजन से क्या है, फ्री है. Let's move on to next option which is verbose. Verbose means containing more words than necessary. Containing more words than necessary. If something is verbose, it means it contains more words than necessary. Let's move on to next option which is not true. It means untrue, which is not true. Oh, that is untrue. असत्य हिंदी में होता है अनट्रू का मतलब जो सत्य नहीं है. यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट होगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड इज एंटोनिम to the given word bombastic. Let's move on to next question. Question is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is from CDS part 1 2021. The word is absurd. It's also an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is bizarre. Option number 2 is meaningless. Option number 3 is reasonable. Option number 4 is thoughtful. Let's look at the meaning of absurd first. Absurd means ridiculously unreasonable, or unsound. If something is absurd, it means it is ridiculously unreasonable. There is no reason, there is no logic. So let's look at the options. Option number 1 is bizarre. It means strikingly out of the ordinary. ordinary जो सामान्य से हट करके अलग हो बिल्कुल, या ऑड हो, उसको हम क्या कहेंगे, बिजार कहेंगे. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज मीनिंगलेस. इट मीन्स हैविंग नो सेंस. इफ समथिंग इज मीनिंगलेस इट मीन्स इट इज हैविंग नो सेंस. Let's move on to next option which is reasonable. If something is reasonable, it means it is based on reason.
रीजंस और फैक्ट्स। जो रीजन और फैक्ट्स पे आधारित हो उसको हम कैसा कहते हैं? रीजनेबल कहते हैं, तार्किक कहते हैं उसको। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन विच इज थॉटफुल। इट मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाई केयरफुल थिंकिंग, केयरफुल एंड रीजनेबल थिंकिंग, रीजनेबल थिंकिंग, थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is also from CDS Part 1 which was conducted in 2021. The word is deceased. It's an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is injured. Option number 2 is alive. Option number 3 is dead. Option number 4 is survived. Let's look at the meaning of deceased. It means no longer living. No longer living. Living. If someone has deceased, it means the person is no longer alive. Is no longer alive. Longer alive. Alive. Let's look at our options one by one. Option number 1 is injured. It means marked by bodily hurt, bodily harm or hurt. इंजर्ड का मतलब घाव कर लेना, अपने आप को घायल कर लेना। अलाइव का मतलब होता है हैविंग लाइफ। इफ समवन or something has life, it means it's alive, having life. Let's move on to next option which is dead. It means deprived of life. जो लाइफ से डिप्राइव्ड हो वो कैसा होगा? डेड होगा, मृत, मृत जिसमें जीवन नहीं हो। Let's look at the last option which is survived. It means to remain in existence, to remain in existence, existence. ऑप्शन नंबर अगर 2 आप देखो alive, so alive would be the correct option. We would mark alive as the correct option because alive is opposite in meaning to the given word deceased. Let's move on to next question. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. Here we have been asked antonym. This question is from CDS Part 1 2021. The word is solace. It's a noun. Let's look at our options. Comfort, relief, punishment, aggravation. These are the options. Let's look at the meaning of solace. As I have already told you, it's a noun here. It means comfort, comfort in grief, grief or sorrow. किसी के ग्रीफ में, किसी के दुख में कंफर्ट या मदद करना, मदद देना या मदद क्या कहलाता है? सॉलेस कहलाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब. Let's look at our options one by one. Option number 1 is comfort. It means to ease the to ease the the trouble, trouble, or you can also say pain. किसी की दुख को, तकलीफ को कम करना क्या कहलाता है? Comfort करना. Let's move on to next option which is relief. Relief means lightening of distress, lightening of distress, 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 or you can also say misery, misery. तो उसको लाइटन करने का मतलब हल्का करना, किसी के डिस्ट्रेस को, किसी के मिजरी को, दुख को हल्का करना क्या कहलाता है? रिलीफ कहलाता है, रिलीफ देना. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज पनिशमेंट. पनिशमेंट मीन्स सीवियर, सीवियर, रफ, और यू कैन ऑल्सो से डिजास्ट्रस और डिजास्ट्रस ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट. पनिशमेंट का हिंदी में मतलब होता है दंड.
Let's move on to last option, which is aggravation. It means an act or circumstance that intensifies something, something. किसी भी सिचुएशन, ऐसा कोई भी एक्ट जो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एक्ट को क्या करे, वर्सनिंग, या आप ये भी कह सकते हो वर्स बना दे, या तो उसको अग्रावेट कर दे, इंटेंसिफाई कर दे, तो उस एक्ट को हम क्या कहेंगे, सर्कमस्टेंस को एग्रेवेशन। सोलेस का अपोजिट पूछा गया है, तो कंफर्ट इन ग्रीफ और सॉरो होता है सोलेस का मतलब। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। The meaning of punishment is somehow opposite in meaning to the given word solace. Let's move on to next question. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. Again, we have been asked antonym. This question is also from CDS Part 1 2021. The word is contrary. It's also an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is similar. Option number 2 is different. Option number 3 is divergent. Option number 4 is good faith. Let's look at the meaning of contrary. It means a fact or condition, a fact or condition that is incompatible, incompatible, compatible to another, कॉन्ट्ररी का मतलब होना, कंट्रास्ट में होना, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी कंडीशन जो कि किसी दूसरे फैक्ट या कंडीशन से कंपैटिबल नहीं है, वो उसके अनुरूप नहीं है। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन नंबर 1 इज सिमिलर। सिमिलर मीन्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, विशेषताएं समान होना सिमिलर कहलाता है। अगर दो वस्तुएं हैं, उनकी विशेषताएं समान है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों वस्तुएं सिमिलर हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज डिफरेंट। इट मीन्स पार्टली और टोटली अनलाइक, पार्टली और टोटली अनलाइक। अनलाइक का मतलब क्या, असमान। तो जो पूरी तरीके से या कोई हिस्सा जब एक दूसरे के अनुरूप ना हो, एक दूसरे से अलग हो, तो हम क्या कहते हैं, उसको डिफरेंट कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन्स मूविंग इन different directions. If your thinking is divergent, I will say that your thinking is diversified, your thinking is constantly moving in a different directions. You can think of so many options at a time. Let's move on to next option, which is good faith. It means honestly, yeah, you can also say honesty of पर्पस। गुड फेथ का मतलब होता है ऑनेस्टी ऑफ पर्पस के प्रति ईमानदारी। ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। द मीनिंग ऑफ सिमिलर इज इन अपोजिशन टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड contrary here. Let's move on to next question. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. Here we have been asked synonym. This question is from CDS Part 1 2021. The word is commotion. It's a noun. Let's look at our options. Option number 1 is uproar. Option number 2 is peace. Option number 3 is sound. Option number 4 is furious. Let's look at the meaning of commotion. It means a condition of civil unrest. A condition
a condition of civil unrest. सिविल अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब क्या होता है? उपद्रव। तो ऐसी कंडीशन, उपद्रव की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कमोशन। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन नंबर 1 is uproar. It means a state of violent disturbance. A state of violent disturbance. A state of violent disturbance. Disturbance. So, if there is a state of violent disturbance, we would say there is uproar. So let's move on to next option, which is peace. It means a state of tranquility. State of tranquility. Tranquility. हिंदी में इसका मतलब होता है शांति, पीस। पीस का मतलब शांति। Let's move on to next option, which is sound. It means free from confusion. Free from confusion, or you can also say disturbance. Let's move on to next option, which is furious. It means exhibiting anger. Exhibiting anger. एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध। तो जो एंगर को एग्जिबिट करे उसको क्या बोलेंगे? फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्रोधी, जो क्रोध में हो, जिसको हम कैसा कहते हैं? फ्यूरियस कहते हैं। कमोशन का हमसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है अप्रोर, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Let's move on to next question. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from CDS Part 1 2021. The word is inherent. It's an adjective. Let's look at our options. Outward, difficult, hollow, inbuilt. These are the options. Let's look at the meaning of inherent first. It means essential character of something. Character of someone or something. जो इसेंशियल कैरेक्टर हो किसी का, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट कहते हैं। इनहेरेंट को इस तरीके से हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें इनहेरेंट में मिलती है तो वो विरासत में मिलती है, मतलब वी हैव नॉट अर्नड, वो हमें खुद ब खुद मिल जाती है, स्वतः मिल जाती है। तो वो जो इसेंशियल कैरेक्टर है किसी का, वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनहेरेंट का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो पहले से ही है। Let's look at the options one by one. Option number 1 is outward. It means moving or directed, moving or directed toward outside. तो उसको हम कैसा कहेंगे? आउटवर्ड कहेंगे। Let's move on to next option, which is difficult. It means hard to do, make, or you can also say carry out. तो अगर किसी चीज को करना कठिन है या बनाना कठिन है तो उसको हम कैसा कहते हैं? वो डिफिकल्ट का मतलब हिंदी में अगर आप देखें तो कठिन ही होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज हेलो. इट मीन्स टू रिस्पेक्ट ग्रेटली, काफी सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट ग्रेटली. लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन, विच इज इनबिल्ट. इट मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग, तो किसी चीज का अगर कोई इंटीग्रल पार्ट है तो हम उसको क्या कहेंगे? वो इनबिल्ट है उसमें। जैसे आप फोन लेते हो तो उसमें आपका ऐप स्टोर, गूगल ऐप स्टोर पहले से ही रहता है। तो गूगल ऐप स्टोर, अगर एंड्रॉयड फोन आपने लिया है तो गूगल ऐप स्टोर पहले से रहता है। तो वो गूगल ऐप स्टोर कैसा है? इनबिल्ट है, एंड्रॉयड फोन के साथ इनबिल्ट आता है।
तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, इनहेरेंट का नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इनबिल्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. Again we have been asked a synonym. This question is also from CDS Part 1 2021. The word is reprimanded. It has been formed by word reprimand. Reprimand is a verb. तो यहाँ पे reprimand जो verb है, verb का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, और थर्ड फॉर्म हम जानते हैं एज अ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज किया जाता है. तो लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. एडमोनिस्ड, appreciated, praised, disliked. These are the options. Let's look at the meaning of reprimanded. Reprimanded, it means severely criticized. Severely criticized. Criticized. Or you can also say scolded. Scolded. बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किसी को अगर कोई किया गया है, कोई डांटा गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो रेप्रिमेंडेड हुआ है. लेट्स लुक एट our options one by one. Option number 1 is admonished. It means to express disapproval. To express, यहाँ पे admonished भी admonish से बना है और ये इसका past participle है, तो हम verb की मीनिंग ही लिख रहे हैं यहाँ पे. To express disapproval. Disapproval. Approval in a gentle way. In a gentle manner. सभ्यता के साथ, जेंटल वे में किसी भी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के किसी आइडिया के प्रति डिसअप्रूवल देना, अपना एक्सप्रेस करना. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज अप्रिसिएटेड. अप्रिसिएटेड भी अप्रिसिएट से बना है, तो वर्ब का मतलब यहाँ पे लिखेंगे, वो तो फिर वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जैसा आप यूज करना चाहो. तो अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? टू वैल्यू, और admire highly. किसी की प्रशंसा करना. प्रशंसा करना क्या कहलाता है? अप्रिसिएट करना कहलाता है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज प्रेज्ड. प्रेज्ड भी प्रेज से बना है, तो इसका मतलब होगा टू ग्लोरीफाई, किसी का बखान करना, प्रेज करना कहलाता है. डिसलाइक्ड का मतलब क्या होगा? टू रिगार्ड विथ डिसलाइक. डिसलाइक का मतलब होता है अनिच्छा, या यू कैन ऑल्सो से अवर्जन, घृणा के साथ. यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिनोनिम रेप्रिमेंडेड का. तो रेप्रिमेंडेड का सिनोनिम अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, डिसलाइक्ड, बिकॉज इट इज समहाउ नियरेस्ट इन मीनिंग to the given word reprimanded. So let's move on to next question. The next question is select the option that is nearest in meaning to the given word. Again nearest meaning. The question is from CDS Part 1 2021. The word is perpetual. It's an adjective. Let's look at our options. Temporary, powerful, everlasting, all, persuasive. These are the options. Let's look at the meaning of perpetual. Perpetual means if something is perpetual, we can say it is continuous. So perpetual means continuing forever. Continuing forever. Forever, हमेशा के लिए continuation में रहना क्या कहलाता है? Perpetual. Let's look at our options one by one. Option number 1 is temporary. It means lasting for a limited period of time. Limited period of time. Period of time you can. हिंदी में इसको हम कैसे देखें? क्षणिक. क्षणिक या सीमित समय के लिए जो लास्ट करे, एग्जिस्टेंस में रहे, उसको हम कैसा कहेंगे? टेम्पररी.
Let's move on to next option, which is powerful. It means having power, showing power, or exhibiting power. You can also say having power, शक्ति है जिसमें, तो इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? शक्तिशाली, पावरफुल का मतलब. Let's move on to next option, which is everlasting. It means in existence forever. In existence forever. हमेशा के लिए कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में रहना क्या कहलाता है? एवरलास्टिंग. अगर कोई चीज हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस में है तो क्या कहेंगे? वो एवरलास्टिंग है. लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन, विच इज ऑल परसुएसिव. इट मीन्स टेंड टू परसुएड. टेंड टू परसुएड. परसुएड का मतलब क्या क्या होता है? कन्विंस करना, कन्विंस, मनाना, परसुएड करना. परपेचुअल का हमसे सिनोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखो, एवरलास्टिंग का भी वही मतलब होता है जो परपेचुअल का मतलब होता है. तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word against synonym. This question is also from CDS part 1, which was conducted in 2021, this year only. The word is exemplify. It's a verb. Let's look at our options. Devise, sympathize, ask for, demonstrate. Let's look at the meaning of exemplify. It means to show or illustrate with examples. तो किसी भी चीज को शो करना या इलस्ट्रेट करना एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या कहलाता है? एग्जाम्प्लीफाई करना कहलाता है. लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शंस. लेट्स लुक एट द ऑप्शन नंबर 1, विच इज डिवाइस. इट मीन्स टू प्लान, टू obtain, obtain something, or you can also say bring bring about something. तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या उसको अस्तित्व में लाने के लिए एक आइडिया बनाना क्या कहलाता है? डिवाइस करना. या इसका मतलब आप ये कह सकते हो खोज करना. डिवाइस इजाद करना. वो कोई आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज सिंपैथाइज. इट मीन्स टू शेयर इन ग्रीफ और सॉरो. सिंपैथाइज का मतलब कहते हैं नहीं कि सिंपैथी रखना दूसरे के प्रति, तो उसके पेन को, उसके सॉरो को, उसके ग्रीफ को क्या करना? शेयर करना, उसको महसूस करना, उसके प्रति करुणा रखना. तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या करना कहेंगे? सिंपैथाइज करना. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज आस्क फॉर. आस्क फॉर का मतलब क्या होगा? एक फ्रेजल वर्ब है, बट यहाँ ऑप्शन में दिया गया है तो उसको हम देखेंगे. इट मीन्स टू कॉल ऑन फॉर एन आंसर के लिए, किसी भी प्रश्न के, किसी भी चीज, किसी बात के लिए क्या करना? उसके आंसर के लिए किसी को समन करना या किसी को बुलाना, किसी से पूछना. तो क्वेश्चन पुट अप करना आस्क फॉर का मतलब होता है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज डेमोन्स्ट्रेट. इट मीन्स टू illustrate and explain with many examples. तो अगर आप कोई चीज क्या कर रहे हो? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इलस्ट्रेट कर रहे हो विथ मेनी एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो एग्जाम्प्लीफाई का हमसे क्या पूछा गया? सिनोनिम पूछा गया है. तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Demonstrate is in nearest in meaning to the given word exemplify.
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जिस एडवाइस की प्रॉमिस मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, वो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा। आप लोगों का कंसर्न है और क्वेरी है कि सर हम वर्ड्स याद करते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो देखिए, उसको याद करने का, याद रखने का सबसे आसान सा तरीका है कि हम उसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। हम कुछ भी लिखें, कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, तो उन वर्ड्स को हम डेली बेसिस पे यूज़ करें, उसको हैबिट बनाएं अपनी, वर्ड्स को यूज़ करना, जो भी वर्ड्स हम सीखें। तो इस तरीके से जब वो हमारे डे टू डे स्पीच का, डे टू डे राइटिंग का हिस्सा बन जाएंगे वो सारे वर्ड्स, तो हम उनको नहीं भूलेंगे। सो अगर हम उन वर्ड्स को सीख रहे हैं और यूज़ करना नहीं जान पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और या यूज़ करते नहीं हैं, तो फिर उनको सीखने का क्या मतलब है? तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू बिकम एफिशिएंट। तो प्रैक्टिस करिए आप, एफिशिएंट बनिए। अदरवाइज वर्ड्स को सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वर्ड्स हम इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश बोल पाएं, इंग्लिश लिख पाएं। और जब हम उसको अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीच में ही इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट इन लर्निंग दीज वर्ड्स? सो मेक श्योर दैट यू यूज दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे स्पीच और राइटिंग। तो ये आज की एडवाइस थी और आप इसको अप्लाई करिए, यूज करिए। काफी कारगर है ये, आपको समझ आएगा इसका बेनिफिट आगे चल के। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें लगातार। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।